Hello everyone, welcome to all of you. Sri Education Hub online classes of chemistry. In our last class we discussed about the substitution nucleophilic reaction of alkyl halides, and today we started our second type of reaction. These are the elimination reaction. This is our second type of reaction, elimination reaction. These reactions also known as dehydrohalogenation because elimination of hydrogen and halogen atom from alkyl halide molecule, so it is also known as dehydrohalogenation, and it is also known as beta elimination because hydrogen atom is eliminate from the beta carbon, so it is also known as beta elimination reaction. In this reaction we take an example. CH3 CH2 Br. This is our ethyl bromide. This is our ethyl bromide. Clear? This carbon is known as alpha carbon. This carbon is alpha carbon and this carbon is beta carbon. Means we can define the alpha and beta carbon. If a carbon atom have any substitutional or functional group, it is known as alpha carbon atom, and its a nearer both carbon are known as beta carbon atom. In this reaction we take ethyl bromide molecule, and when it is heated in the presence of alcoholic KOH, then elimination of hydrogen and bromine takes place from the ethyl bromide molecule, and it converts into CH2 double bond CH2 एथीन. क्लियर? इसके अंदर हमें जो ध्यान रखना है, ध्यान हमें इस चीज का रखना है कि एक KOH के साथ में, एक्वस KOH के साथ में हमने पीछे भी रिएक्शन को स्टडी किया था. व्हेन aqueous KOH or NaOH react with alkyl halide gives alcohol, and in this reaction if alkyl halide heated in the presence of alcoholic KOH, they gives ethene, or we can say they gives alkene. क्लियर? इस रिएक्शन की अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म अगर हम देखें, here ethyl bromide molecule when it is heated with alcoholic KOH, जब हम इसको alcoholic KOH के साथ में हीट करते हैं तो इसमें K plus and OH minus, K plus and OH minus molecule, यहाँ से एलिमिनेशन होगा इस H2O का और यहाँ से एलिमिनेशन होगा इस KBr का. क्लियर? मैकेनिज्म के अंदर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है. और आवर प्रोडक्ट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2. क्लियर है? इसके बाद में हम आगे देखते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर. अगर हम यहाँ बात करें रिएक्टिविटी ऑर्डर की, reactivity order of alkyl halide towards elimination reaction.
it is 3 degree are highly reactive, then 2 degree are less reactive as compared 3 degree, then 1 degree alkyl halide are less reactive than 2 degree alkyl halide. क्लियर? अब इसके अंदर अगर हम देखें कि अगर हमारे पास कोई इस तरह की एल्कीन है जिसके अंदर एक से ज़्यादा टाइप के बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, मीन्स इफ वी हैव alkyl halide that have more than one type of beta hydrogen, like this. If we have alkyl halide that contain more than one type of beta carbon atom, or we can say beta hydrogen atom. Clear? What will be happen? उस कंडीशन में क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें CH3 single bond, CH2 single bond, CH, CH3 और यहाँ पर है Br जुड़ा हुआ. अब इस केस में दिस कार्बन इज alpha carbon, this one is beta and it is also beta, and we represent it by beta dash. In this case we have more than one, or we can say we have 2 beta carbon atom, or we can say 2 beta hydrogen atoms are present. Then what will be happen? In this case there is a possibility of formation of 2 type of product. If in first case here beta hydrogen atom is eliminate, then what will be product? Then CH3 single bond, CH double bond, CH single bond, CH3. And in other hand, if this beta hydrogen atom is eliminate, then what will be happen? Then product will be CH3 single bond, CH2 single bond, CH double bond, CH2. अगर हम इनके नाम देखें तो हमारे पास में जो फर्स्ट है इट इज 1 2 3 and 4 means 2 butene. This is 2 butene, and 1 2 3 and 4 this is 1 butene. क्लियर? तो इस केस में कौन सी एल्कीन सबसे ज़्यादा अमाउंट में बनेगी और कौन सी लेस अमाउंट में बनेगी और क्यों बनेगी, और इसके रिगार्डिंग क्या रूल है उसको हमें आगे स्टडी करना है. बिल्कुल सिंपल सा है. इसके अंदर जो हम बात करें 2 ब्यूटीन की, it is formed in high amount, means we can say it is formed near about 81% and it is near about 19%. और इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो रूल दिया था वो रूल दिया था सेथ-जेफ ने. इसको एक्सप्लेन करने का जो रूल दिया था वो रूल दिया था सेथ-जेफ ने. यहाँ मैं लिख रहा हूँ
सेथजेफ ने इससे रिगार्डिंग रूल दिया था और इन्होंने बताया था कि वो एल्कीन सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रिपेयर होगी आफ्टर द बीटा एलिमिनेशन दैट हैव more number of alkyl group attached with double bonded carbon atoms. Here in the case of 2-butene it have 2 alkyl group, means here 2 methyl group are present on both double bonded carbon atoms, and in the case of 1-butene it contain only one alkyl group, that is ethyl, that is present on both double bonded carbon atom. So according to Setzchev we can say more production of that alkene in which more number of alkyl groups are present at double bonded carbon atom. क्लियर? आगे इसमें हम बात करते हैं इजी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन. easy of formation of alkene means किस टाइप की एल्कीन्स जो हैं उनका फॉर्मेशन या उनका प्रिपरेशन जो है वो इजीली हो सकता है. तो इसके अंदर हमने जो डिस्कशन किया था कि वो एल्कीन सबसे ज़्यादा अमाउंट में बनेगी जिसके साथ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के साथ जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे. तो इसी ऑर्डर में अगर हम देखें कि अगर हमारे पास में कोई एल्कीन इस तरह की अगर बन रही है, आफ्टर दिस रिएक्शन if we get such a type of alkene then it is more preferred to prepare. clear? then इसके बाद अगर हम बात करें इससे लेस प्रेफरेंस किस टाइप की एल्कीन के लिए होगा, जहाँ पर दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के साथ टोटल 3 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होंगे. और इससे लेस प्रेफरेंस किस टाइप की एल्कीन के लिए होगा, अगर हम यहाँ पर बात करें कि हमारे पास कोई इस टाइप की एल्कीन है जिसमें 2 डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के साथ 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हों, देन उससे लेस प्रेफरेंस किस टाइप की एल्कीन के लिए होगा. इसको अगर हम देखें तो इस टाइप की एल्कीन्स इनसे कम बनेंगी इन विच ओनली 1 एल्किल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन बोथ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स. एंड सबसे लेस अगर हम प्रेफरेंस की बात करें तो एल्कीन दे हैव नॉट एनी एल्किल ग्रुप ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम. मीन्स हम ये कह सकते हैं ये हमारी एथीन हो गई. तो इसके अंदर हमने जो सेथजेफ रूल के अकॉर्डिंग देखा था, अकॉर्डिंग टू सेथजेफ रूल हमने डिस्कशन किया था कि सच टाइप ऑफ एल्कीन्स आर फॉर्म्ड इन मोर अमाउंट दे हैव मोर एल्किल ग्रुप. इन दिस एल्कीन हियर टोटल 4 एल्किल ग्रुप्स आर प्रेजेंट. इन दिस एल्कीन हियर 3 एल्किल ग्रुप्स आर प्रेजेंट. In this alkene only 2 alkyl groups are present. In this alkene only 1 alkyl group is present. But in this alkene there is no alkyl group is
प्रेजेंट। सो नेक्स्ट हम इसके अंदर अपनी थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। आवर थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस आर react with metals, react with metals। मेटल्स के साथ में अगर हम रिएक्शन के बारे में बात करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन एल्किल हैलाइड की हेल्प से हम कर सकते हैं, जिसमें से अगर हम रिएक्शन को देखें तो हमारी जो फर्स्ट टाइप की जो रिएक्शन होगी, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है रिएक्ट विद मैग्नीशियम, react with magnesium Mg। In this reaction, alkyl halide react with magnesium in the presence of dry ether gives RMgX, alkyl magnesium halide। और Grignard reagent, it is an important reagent in organic chemistry for the formation of various organic compounds, so it is an important reagent। अगर हम यहाँ पर्टिकुलर एग्जांपल लें C2H5 Br प्लस मैग्नीशियम ड्राई ईथर, ईथर को हम इस फॉर्म में भी आपको दिया हुआ मिल सकता है ROR, देन इट फॉर्म C2H5 MgBr, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्लियर? एंड इसी वे में अगर हम इसकी जो नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन है, सेकेंड टाइप की रिएक्शन रिएक्ट विद सोडियम, रिएक्ट विद सोडियम, सोडियम के साथ रिएक्शन। रिएक्ट विद सोडियम के अंदर हमें यहाँ दो टाइप की रिएक्शन को स्टडी करना है, जिसमें अगर हम कहें जो हमारा फर्स्ट पार्ट है या हम इसका ए पार्ट अगर हम लें तो ए पार्ट है हमारा वोल्टेज रिएक्शन, वोल्टेज रिएक्शन नेम रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्ट विद सोडियम में हमें तीन टाइप की रिएक्शन को स्टडी करना है, जिसमें से दो टाइप की रिएक्शन को, या हम ये कहें कि एक टाइप की रिएक्शन जो स्पेशली फॉर एल्किल हैलाइड्स है, एक टाइप की रिएक्शन है जो स्पेशली फॉर एरिल हैलाइड्स है, और एक रिएक्शन है जो एल्किल हैलाइड प्लस एरिल हैलाइड के यूज़ से कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर हम दो टाइप की रिएक्शंस का स्टडी करेंगे, जिसमें एक रिएक्शन हमारी ऐसी है जिसमें दोनों एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं, दैट इज़ नोन एज वोल्टेज रिएक्शन। क्लियर है? और सेकंड जो हम इसमें स्टडी करने वाले हैं वो होगी हमारी वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन। इन दैट रिएक्शन वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड एंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एरिल हैलाइड इज यूज्ड। तो वोल्टेज रिएक्शन में अगर हम देखें, व्हेन टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड, यहाँ हम ले रहे हैं RX, रिएक्ट विद सोडियम in the presence of dry ether, here two molecules of alkyl halide and two molecules of sodium are used। Clear? Then we get RR plus 2NaX, यहाँ हमें मिलेगी एल्कीन।
और ये एल्केन होगी हायर एल्केन। एल्केन होगी हायर एल्केन हमें यहाँ मिलेगी। ठीक है, अब अगर हम इसके अंदर पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात करें, इफ वी टेक C2H5 Br plus Na in the presence of dry ether, it gives C2H5 plus 2NaBr, or we can write it C4H10, means butane. Here we use ethyl bromide. अब इसके अंदर जो स्पेशल पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है वो ये है, यहाँ जो हमने एथिल ब्रोमाइड का यूज़ किया है, इस केस में हमारे पास एक ही टाइप का एल्किल हैलाइड का हमने यूज़ किया है। इफ़ अगर हमारे पास में एक से ज़्यादा टाइप के एल्किल हैलाइड हो तो क्या होगा? इफ़ वी यूज़ more than one type of alkyl halide, then we get mixture of more than one type of एल्केन। कैसे हमें यहाँ पर एक से ज़्यादा टाइप की एल्केन का मिक्सचर देखने को मिलेगा, उसके लिए हम आगे फर्दर एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके स्टडी करते हैं इसको। कंसीडर इफ वी टेक हियर CH3Br प्लस Na प्लस C2H5Br, और प्रेजेंस होगी यहाँ पर वही ड्राई ईथर। क्लियर? अब इसके अंदर जो रिएक्शन कंप्लीट होगी, एक बार तो हमें इसके दो मॉलिक्यूल का यूज़ करना है और उससे प्रोडक्ट बनेगा। एक बार इसके दो मॉलिक्यूल का यूज़ होगा और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और एक बार एक मॉलिक्यूल इसका और एक मॉलिक्यूल इसका, इनके यूज़ से एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। क्लियर हो रही है? तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ हम दो मॉलिक्यूल CH3Br के ले रहे हैं मेथिल ब्रोमाइड के, और एक प्रोडक्ट बन रहा है। Then after we take two molecule of ethyl bromide, then we get one product. Then after we take one molecule of methyl bromide and one molecule of ethyl bromide. So we can say here total molecule of methyl bromide required are 3, and 3 molecules of ethyl bromide required. Then total 6 molecule of sodium required in this reaction, and we get product। जैसा मैंने आपको बताया कि एक बार दो मॉलिक्यूल इसके अगर हम यूज़ करते हैं तो क्या बनता है, इस तरह से देखने को मिलेगा हमें CH3 एक बार अगर हम दोनों मॉलिक्यूल इसके यूज़ करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा, C2H5, या हम ये कह सकते हैं C4H10 ब्यूटेन देखने को मिलेगी। और एक बार अगर एक मॉलिक्यूल ये और एक मॉलिक्यूल ये इनका यूज़ होता है तो यहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा, CH3C2H5, means here it is butane, it is propane,
and it is ethane. क्लियर हुआ? तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें इन तीनों का मिक्सचर मिलेगा, इन तीनों प्रोडक्ट का हमें मिक्सचर मिलेगा। प्लस साथ में क्या बनेगा, जब दो मॉलिक्यूल इसके यूज़ होंगे मेथिल ब्रोमाइड के, तो कितने मॉलिक्यूल यहाँ पर NaBr के बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल। देन आफ्टर जब एथिल ब्रोमाइड यूज़ होगा, 2 मॉलिक्यूल NaBr के बनेंगे। And when 1 molecule of ethyl bromide and 1 molecule of methyl bromide are used, then 2 molecules of NaBr are formed. Means total 6 molecule of NaBr are formed. बिल्कुल इजी है, इजीली हम इसको याद रख सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत इस रिएक्शन में नहीं होने वाली है। तो आई होप वोल्टाज रिएक्शन अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। देन उसके बाद में हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट, जो इसका सेकंड पार्ट है रिएक्ट विद सोडियम में, वोल्टाज फिटिंग रिएक्शन। आवर सेकंड रिएक्शन इज वोल्टाज फिटिंग रिएक्शन, मीन्स बी पार्ट। वोल्टाज फिटिंग रिएक्शन। यहाँ पर 2 अलग अलग नाम हैं, वोल्टाज और एक है फिटिंग। वोल्टाज में हमें एल्किल हैलाइड का यूज़ करना है, फिटिंग मीन्स हमें एरिल हैलाइड का यूज़ करना है। तो जो आगे हम फिटिंग रिएक्शन पढ़ेंगे उस टाइप दोनों मॉलिक्यूल एरिल हैलाइड के यूज़ होंगे, और वही इनकी जो रिएक्शन है सोडियम के साथ होगी, और यहाँ प्रेजेंस होगी वही ड्राई ईथर की, और लास्ट हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, एल्किल और एरिल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, और फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा यहाँ पर, एल्किल बेंजीन। क्लियर? अब इसको हम रिएक्शन की फॉर्म में देख लेते हैं। इफ वी टेक 1 molecule of alkyl halide, then 2 molecule of sodium and 1 molecule of aryl halide, यहाँ से जो एलिमिनेशन होगा ये पार्ट एलिमिनेट होगा, एंड आवर फाइनल प्रोडक्ट इज प्रेजेंस ड्राई ईथर एल्किल बेंजीन। इसके एग्जाम्पल में हम इजीली यहाँ पर कोई भी एल्किल ग्रुप का यूज़ करके इसके एग्जाम्पल को आगे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है जिसकी स्टडी हम यहाँ इसमें नहीं करेंगे, उसकी स्टडी हम एरिल हैलाइड के साथ में करेंगे। तो इसी के साथ में हमारी जो एल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंप्लीट होती हैं। अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एरिल हैलाइड और हेलो एरिन्स। क्लियर? अभी तक इस लेसन के अंदर जो हमने स्टडी किया है एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड की डेफिनेशन, उनका क्लासिफिकेशन, देन उनका नोमेनक्लेचर, और इसके बाद में प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड। देन आफ्टर वी स्टडी अबाउट द physical properties of both alkyl halide and aryl halide, and then we study about the chemical properties of alkyl halide. In the chemical properties of alkyl halide we study its different reactions like substitution nucleophilic reaction, elimination reaction and react with metals.
क्लियर। अब आगे जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, अपनी उस क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एरिल हैलाइड। यहाँ हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। एरिल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमें किस किस टाइप की रिएक्शन को स्टडी करना है। एरिल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो हमें स्टडी करनी है, फर्स्ट ऑफ देम रिएक्शंस आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, and then second type of reactions are nucleophilic substitution reaction, and at last react with metals। क्लियर। तो यहाँ जो हमें तीनों टाइप की रिएक्शन जो स्टडी करनी है उनके हम यहाँ नाम लिख लेते हैं और इनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फर्स्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ SN रिएक्शन, जो हमने एल्किल हैलाइड में भी स्टडी की हैं। सेकेंड टाइप की जो हमारी रिएक्शन होंगी वो हैं SE रिएक्शन, मीन्स सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। और जो हमारी थर्ड टाइप की इसमें रिएक्शन होंगी, रिएक्ट विद मेटल्स। क्लियर। तो अपनी नेक्स्ट क्लास में हमें इन रिएक्शंस को स्टडी करना है फॉर एरिल हैलाइड्स। आज की क्लास में इतना ही। हैव अ गुड डे।